ड्रामा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद बर्बाद किया है, हम अपने दुश्मन खुद हैं माशाल्लाह। आवर मीडिया शुड बी हैंग्ड, दे शुड बी हैंग्ड। प्रोफेशनल काम में सॉरी नहीं होती कि अल्लाह का वास्ता मेरे पैसे दे दो। The individual in front of me needs no introduction. A perfectionist who has taken Pakistan's name with his acting persona to the highest level of recognition. Combination of any character you can think of is his strength. He fears no concept. He doesn't shy away from any subject and gives in to the demand of compatibility and commitment within any concept, which requires 100% dedication. Noman Ejaz, a name known to many, is a pride of Pakistan, an award winner. And Pakistan is surely proud to have been blessed with the League of Acting Supremacy. And I have to mention his well-known works to re-acknowledge and praise his worth. Being a law graduate, Noman Ejaz commenced his career under the direction helm of Nusrat Thakur. The iconic Mir Balaj of In Dasht, Huzur Bakhsh in Nijat, my ultimate favorite Ye Zindagi, directed by none other than my godmother Sultana Siddiqui, Malangi, Chubhan, the stellar Salar in Noorpur Ki Rani, to the unforgettable Mera Sain, Jal Pari, the critically acclaimed Ullu Barai Farokh Nahi, and of course Aur Angreza. To being a film star in Ramchand Pakistani, directed by Mehreen Jawar and opposite Nandita Das, and now touching the boundaries of web series as well as a two-time Lux Style Award winner and a Pride of Performance Award winner, is regarded the highest stature of award in the country. Is with me. Thank you, Noman Bhai. So sorry for the long little intro. Thank you. But, yeah, I mean, such a great elaborated kind of an introduction. I mean, I'm having it for the first time actually. Little bit of correction, like whereas the awards are concerned, I don't believe in awards. Yes. My award is if somebody gives me respect and smile whenever I come across anybody. That's quite enough for me. That's my award actually. I don't believe in those lohe ka tukdas, which people feel very proud of it. I got my pride of performance long time back in almost after 21 years of my service. And whereas these Lux and Hum awards are concerned, I think I can't even count them. I mean, they are more than almost equivalent to how many awards shows they had actually somehow or the other. But I don't go and I don't take my awards myself because I have a different kind of a perception about things. I wish every Pakistani should think the way you are thinking and the way you are saying it. But that's a dilemma which we guys are facing back. I mean, here in Pakistan, बड़े को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है somehow the other. उसको कमानी पड़ती है और कमाना अगर आपको थोड़ी सी मिल रही हो तो आपको कमाने में आसानी हो जाती है, लेकिन बस वो यहाँ पे एक अजीब भेड़ चाल है. We will talk about it definitely as progress with the program. So, yeah. आपको कैसा लग रहा है कि आज के टाइम पे जो आपने देखा है, how has the content progressed? How have characters progressed, and how are we standing? People in Karachi, because the hub has moved to Karachi, people of Karachi and the actors and people from the fraternity, from the showbiz media world, everybody thinks there's a great growth which took place for the last 15-20 years, whereas drama industry is concerned. I don't believe that. It's not the growth, it's the volume. The volume increased, the growth didn't. I define growth as if we are doing experiments on different issues. We didn't. We just, what we did, we caged the entire drama within one premises. I mean, within one cage, actually. We don't want to go, I mean, our drama, I mean, if you check our drama on YouTube or anywhere, even on our televisions, you will notice this, that our characters, they start walking from lounge to drawing room, from drawing room to kitchen, from kitchen to bedroom, and from bedroom it ends. I mean, they don't want to go outside. They don't want to even look outside the window, what is happening outside the window. There are too many social issues in our society right now. And if we start exploring them, I think we can do a brilliant job. But somehow or the other, because of some kind of limitations which are being put by the channels, because they are only interested in the so-called rating, and they feel कि औरत की तस्लील करो, उसको ह्यूमिलेट करो, उसको मारो, उसको पीटो, बिकॉज मोस्टली औरतें ड्रामा देखती हैं, औरत को गलत दिखा दो तो हमारा ड्रामा हिट है. दिस इज व्हाट दे हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ, एंड आवर ड्रामास वो उनसे साफ पता चलता है. देयर इज नो रिस्पेक्ट एलिमेंट
चीखो पुकार है ड्रामे में, बदतमीजी है ड्रामों में। अगर अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, आप अपना ड्रामा उठा के देख लीजिए, हम किस नहज पे ड्रामा ले गए हैं, और जबकि हमारा ड्रामा वाज सेड टू बी बेटर देन द इंडियन मूवीज एक्चुअली फ्रॉम माय एरा। आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उस जमाने में ड्रामा एक डिफरेंट नौयत का ड्रामा था। आई मीन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ निजात व्हिच यू जस्ट कोटेड, खुदा बख्श ऑफ निजात। निजात का इशू क्या था ड्रामे का? असगर नदीम सैयद wrote it down. The three issues which we discussed in that drama was family planning, jali adwiyat, right? And thirdly, what is happening in the madrasas. Still, we are facing those three issues since 1992-93 till today. If we talk about, these are the only three issues. अब तो इन तीन issues पे ड्रामे बनते ही नहीं है. Nobody wants to touch these three issues. So, पाकिस्तान में ड्रामा जैसा बन रहा है, जैसा चल रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही बनता और चलता रहेगा। अच्छे ड्रामे आ जाए, किसी को कोई पसंद आ जाए और वो उसको ग्रेड ऊपर कर दे, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट ओवरऑल बीइंग अ मीडिया गाय, आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस जो कि होनी चाहिए थी। हाँ, हमारा इक्विपमेंट लेवल हमने वो तो जरूर अपग्रेड कर लिया है, उसकी अपग्रेडिंग करके उसको हम बना तो रहे हैं, पिक्चर आपको अच्छी दिखाई तो दे रही है, बट उसका कंटेंट क्या है, उस पर नोबडी इज वर्किंग जिस तरह काम होना चाहिए था इतने सालों में। वी हैव मोबाइल्स इन आवर हैंड्स, राइट? आपके हाथ में पूरी दुनिया है। अब आपके हाथ में नेटफ्लिक्स है, आपके हाथ में प्राइम अमेजॉन है, आपके हाथ में और जितने बड़े वेब्स हैं वो सारे आपके हाथ में आ गए हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम एज वी गाइज आर वर्किंग फॉर द वेब फॉर Z5, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी गाइज वर फेसिंग, like we don't have writers who can write down for web. We don't have directors who can direct for web. We don't have actors who can act according to what web actors should be, the way web actors should be working. We have to unlearn all those things, and we have to learn what is happening now. The writers need to write down the conversation, which they can't. हमारे writers, they can't write conversation. दो कैरेक्टर्स के दरमियान की कन्वर्सेशन नहीं, वो डायलॉग बाजी लिखते हैं। डायलॉग बाजी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेब। You need to pick up the issue and you have to talk about the issue, and every scene should be interconnected with each other, which our writers, they are not used to it. So they have to unlearn, they have to watch everything. देखते तो हैं, मिसालें भी देते हैं, लिख नहीं पाते हैं वैसा। जो पूछा था आपसे कि अगर आपने इस तरह के hindrances, अगर you've come across it, now you also get to meet network executives, you also get to meet producers. Do you try to give your feedback to them? Do you try to make them understand, where are we heading? Are we not going, or are they not listening or understanding anything? Yes, लेकिन हमारे यहाँ problem, the biggest issue which we guys are facing is we don't have broadcasters to understand us. पहले ड्रामा बनता था, क्रिएटिव लोग बनाया करते थे ड्रामा। आज कैलकुलेटर बनाता है ड्रामा। आज एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कंटेंट हेड, वो कहता है ये इतने में कॉस्ट कर रहा है, ये इतने में बनना चाहिए, दैट इज इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इट। ये आपको जागना पड़ेगा। आई थिंक एवरीबडी इज स्लीपिंग। वो चाहते हैं कि इस डब्बे का पेट भरते रहो बस। आपका ऑडियंस आज नेटफ्लिक्स देखता है, प्राइम अमेजॉन देखता है, आप उसको अच्छा दो, वो वापस आए। आप उसको अच्छा दे ही नहीं पा रहे हो। आप प्राइवेट प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। Okay. You are responsible. The broadcasters are responsible for whatever they are doing. Sultana Appa, when she made her first private production, which was Ye Zindagi, I was a part of it. खुला के ऊपर था। इतनी दुनिया खड़ी हो गई थी, ये क्या है, ये क्या है। एक बामकसद ड्रामा था, उसमें लोगों को बताया गया था बहुत सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस दी गई थी। Our media should be hanged. They should be hanged because they are not educating the viewers, the audience. They're not giving them the best. They're just giving them because they feel कि ये इनके दिमाग, आपके ऑडियंस के दिमाग इतने ही हैं, इतने नहीं हैं, बहुत बड़े हो गए हैं।
बड़ी वुसअत आ गई है। Okay, fair enough. नहीं, I hope, I mean, when we have people like you associated, I'm sure कि वो noise होगा. मैं अगर एक्टिंग की तरफ आता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि कंटेंट वाइज हम काफी गिर गए, तो एक टाइम पे एक्टिंग और कंटेंट समझ के रिहर्सल या कैरेक्टर के डेप्थ में जाना भी एक पार्ट होता था. डू यू स्टिल कंटिन्यू दैट? इज इट बिकम लाइक आज कैसी कास्टिंग होती है? मैं आपको एक बड़ा मजेदार सिस्टम बताता हूँ. हमारे दौर में कैसे कास्टिंग होती थी. हमारे दौर में ऐसे होता था कि प्रोड्यूसर एक वन लाइन सोचता था, राइटर को इंगेज करता था, एक डायरेक्टर को इंगेज करता था, वो डायरेक्टर के साथ बैठ के अपनी वन लाइन डिस्कस करता था. एक राइटर को मार्क किया जाता था, उस राइटर के साथ बैठ के वो वन लाइन डिस्कस की जाती थी. फिर प्रोड्यूसर हट जाता था और राइटर और डायरेक्टर बैठ के उसको पूरे को बनाते थे. जब वो पूरा बन जाता था उसके बाद बैठ के उसके ऊपर कास्टिंग होती थी. कास्टिंग होने के बाद उसको शूटिंग पे ले जाया जाता था. जब वो तैयार होता था तो चैनल को पिच किया जाता था. आज क्या होता है कि चैनल आपको बुला के कहता है ये स्क्रिप्ट है, ये कास्ट है, बना लो. अब वो चाहे वो जो एक्टर उसने लिया है वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. बट बिकॉज वो कॉस्ट के अंदर आ रहा है, चाहे वो बर्बाद कर दे उस रोल को, बट क्योंकि वो कॉस्ट के अंदर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. और या वो उनको इजीली अवेलेबल है. सो यू सी, हम ड्रामा किसी बाहर से किसी ने आके बर्बाद नहीं किया है. ड्रामा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद बर्बाद किया है. हम अपने दुश्मन खुद हैं माशाल्लाह. हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है. वी डोंट नीड एनीबॉडी. Yes, sure. अच्छा, and speaking, you're talking about this thing, लेकिन I mean, क्या हम somewhere in the middle did we lose the ground of being professional? Did we somehow, I mean, were we professional? या कुछ issue हो गया है, professional नहीं है? Excuse me, राफे, the word professional वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता. हमें तो पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है. We don't know. Trust me, we don't know. हमारे ब्रॉडकास्टर को नहीं पता, हमारे प्रोड्यूसर को नहीं पता, हमारे एक्टर्स को नहीं पता, बहुत सारे एक्टर्स को नहीं पता. शायद होंगे प्रोफेशनल, एक आधा कोई होगा, एक आधे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोफेशनल काम क्या होता है. प्रोफेशनल काम में सॉरी नहीं होती. हमारा तो सारा काम ही सॉरी की बुनियाद पे है. ये क्यों नहीं हुआ? सॉरी वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर ये किया क्यों है? तो कॉम्प्रोमाइज करके हमारा प्रोड्यूसर 4-4, 5-5 साल एड़ियां रगड़ता है अपने एक प्रोडक्ट का पैसा निकलवाने के लिए. और जिस प्रोड्यूसर ने किसी ब्रॉडकास्टर से 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपया लेना है अपने प्रोडक्ट्स का, वो उसके दफ्तर में जाके यूं हाथ जोड़ के ना उसके घुटने पकड़ा था कि अल्लाह का वास्ता मेरे पैसे दे दो. ये तो हाल है इस मुल्क का. ये तो हाल है यहाँ के प्रोफेशनलिज्म का. हमारे यहाँ अकेले की कोई आवाज नहीं होती. पहली बात तो ये, हमारे यहाँ बॉडीज बनने नहीं दी किसी ने. हमारे यहाँ जो बॉडीज बनी भी हैं तो उन लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए काम किया है. हमारे यहाँ यकजहती नहीं है, यूनिटी नहीं है. हमारे यहाँ कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता. जब तक उसको खुद आग नहीं लग जाती वो चीखता नहीं है. हमारे यहाँ बहुत मसाइल है. मेरी जुगाड़ फिट हुई भी है किसी एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के साथ खड़े होने की? भाड़ में जाए वो, लेट हिम सफर. दिस इज द एटीट्यूड ऑफ 90% ऑफ द पाकिस्तानीज वर्किंग इन पाकिस्तान, एंड नोबडी कैन डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट. They might say कि नुमान इजाज whatever he is saying, he is doing this and he is doing that, but गलत साबित करो मुझे. This is an open challenge. नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. बिकॉज छोटे से टाइम पे जब मैं भी व्हेन आई वाज एफिलिएटेड विद द इंडस्ट्री, तो मैंने बड़े मसले देखे और मैं बड़ा आई ट्राई टू स्पीक टू द नेटवर्क एग्जीक्यूटिव. आई यूज्ड टू बी लाइक, क्यों हो रहा है? तो वो कहते थे कि यार जिस तरह चल रहा है अगर ये कंटिन्यू होगा तो इंडस्ट्री गिर जाएगी. मतलब कि मैंने सुना, आई आस्क्ड द सीनियर्स, तो मैंने बोला आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करो. बट वो फिक्स नहीं होता है. तो वो फ्रस्ट्रेशंस आपके यूथ में नजर आ रही है मेरे थ्रू. बट आपको पता है कितने बैच निकल चुके हैं फिल्म मेकर्स के इन सो कॉल्ड यहाँ की यूनिवर्सिटीज और जो कोर्सेज करवाते हैं फिल्म मेकिंग के, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? इतने पैसे देके उन बच्चों ने फिल्म मेकिंग सीखी है. कहाँ है फील्ड?
कहाँ मिलती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज, रुल रहे हैं। कोई प्रोड्यूसर है किसी करंट अफेयर के प्रोग्राम का, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू एनीथिंग। Where are the opportunities? Why these kids are wasting so much of money? Why these institutions are getting so much of fees from those poor kids? चलिए फेयर इनफ। लेकिन अभी अभी आपने ये जो बात की यहाँ पे सेट्स पे आने वाली है, हाउ आर यू सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर टू एक्टर? यू सीइंग यंग एक्टर्स, यू सीइंग ओल्ड एक्टर्स, हाउ आर यू सीइंग द प्रोग्रेशन हैपनिंग विद पीपल कमिंग ऑन बोर्ड? इज देयर अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट? आर यू सीइंग देम बीइंग सीरियस? मैंने एक दो लोगों से बात की तो मुझे बोलते हैं आजकल हाथ में सेलफोन होता है, आजकल इंस्टाग्रामिंग हो रही होती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। व्हाट हैव यू विटनेस्ड इन योर टाइम एंड हाउ इज इट टेकन सीरियसली? देखो वही वाली बात है राफे, व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, ये फोन शोन ये चीजें नहीं होती थी। एक अदब का एलिमेंट होता था। मेरी कभी जरूरत भी नहीं होती थी कि मेरा डायरेक्टर कमरे में आया और मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, मुझे एहतरामन खड़ा होना पड़ता था। कोई सीनियर आई है खातून, मेरी जरूरत भी नहीं होती थी, टिट है कि मैं के कुर्सी पे बैठा हूँ और वो खातून आई है, वो कोई भी है, छोटी है बड़ी है, वट एवर, वी यूज टू गिव रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है यंगस्टर्स के अंदर से। दीज ऑल यंगस्टर्स नीड टू बी ग्रूम्ड। हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे ये सिखाई जाए चीजें, और साथ ये भी सिखाया जाए कि सेट पे बिहेव कैसे करना होता है। हर चीज का एक डिकोरम है, एक मैनरिज्म है, छुरी कांटे से कैसे खाना खाना है, ये सीखना पड़ेगा आपको। आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें। हम कहते हैं कि नहीं हमें सब पता। हमारा यंगस्टर्स स्पेशली हैं, कुछ यंगस्टर्स बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर एल्डर्स। हमारे दौर में डायरेक्टर कुर्सी पे बैठता था और हम उसके घुटनों के पास बैठ के उनसे पूछा करते थे, सर ये क्या लिखा है, सर इसको कैसे बोलना है। आज नई लड़की आती है तो वो कुर्सी पे बैठती है और डायरेक्टर घुटनों पे बैठ के कहता है कि कितनी देर में सीन कर लेंगी आप। तो वो आगे से कह रही होती है कि मुझे ये 10 मिनट दें, मैं ये एक फोन कॉल कर लूं, या मुझे शाम को 7 बजे चली जाना है, मुझे जल्दी फारिग कर दीजिएगा। सो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट एवरीथिंग, मॉरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट, नॉर्म्स नहीं है पता यंगस्टर्स को। बहुत कम बच्चे हैं जो बाअदब हैं, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ उन्हीं बच्चों को फल लगता है, उन्हीं लोगों को लगता है जो झुकते हैं, जिनको बड़े का अदब आता है। अगर फर्ज करें आप कल खड़े हो गए, अगर आपने किसी एक्टर के खिलाफ बोल दिया, और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने बोल दिया कि हाउ डेयर नुमान एजाज स्पीक अगेंस्ट एन एक्टर एंड वी विल बैन द एक्टर। I never try to become a part of any controversy for this particular reason, because अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। दूसरी बात ये कि जब ये पता चल जाए कि बड़े की रिस्पेक्ट देने वाले अब खत्म हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ा जो अलमिया इस मुल्क में हुआ है, ये सोशल मीडिया आ गया। ये सोशल मीडिया पाकिस्तान के लिए नहीं था। ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की धज्जियां उखेड़नी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी पॉजिटिव चीज के लिए नहीं इस्तेमाल होता। मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे जाऊंगा ना, तो आप यकीन मानिए इस बात का कि उस स्टेटमेंट के ऊपर बहस नहीं होगी, नुमान इजाज के किरदार पे बहस होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश हो रही होगी कि नुमान भाई की कोई पुरानी चीज ऐसी निकाल के लाएं ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे नुमान भाई जलील और ख्वार हो जाएं और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। हमें पहले तो अपने अंदर एक टॉलरेंस लेवल पैदा करना पड़ेगा कि सारी दुनिया की चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती हैं, प्लीज फॉर गॉड से। और हेल्दी गुफ्तगू में पार्टिसिपेट करें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालें। हमारे अंदर नेगेटिविटी राफे कूट कूट के भरी हुई है। हम जेनेटिकली नेगेटिव हैं, हम जेनेटिकली झूठे हैं, हम जेनेटिकली करप्ट हैं, वी कांट हेल्प इट। और इतनी सारी जेनेटिक इश्यूज के बाद हम कहते हैं कि दुनिया में हमारा इमेज भी अच्छा हो जाए, दुनिया में हमें लोग तस्लीम भी कर लें, और हमारे काम का डंका भी बाजे। और ये कैसे मुमकिन होगा, मुझे कोई ये बता दे। तो सर अगर आप बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया के गटर में फंसे हुए हैं और चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जाती हैं, बहुत रिसेंटली मैंने भी देखा कि यू आर अगेन कॉट इन सम कंट्रोवर्सी विद सेइंग समथिंग अबाउट एन एक्टर एंड इट गॉट वेरी हाइलाइटेड। People are saying that it was done on purpose. People are saying, oh, these actors get together, they hype each other out by speaking like that. I mean, is it actually true? Is that actors get together for? देखो, my contemporaries, me, actors of my era, we are like brothers. We are like family members.
right? We've been working for the last almost 30 years each. अगर आप सबके प्रोफाइल्स चेक करें तो 30 साल का तजुर्बा सबका है, और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसी गुफ्तगू में से इतनी सी चीज कोई उठा के वो पूरी बात नहीं सुनेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस स्टेट ऑफ माइंड में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, कौन कर रहा है। वो जैसे मैंने कहा ना कि मैं उस दौर का वकील हूँ, वकालत की जब कहते थे कि कोई अगर कहीं एडमिशन नहीं मिला तो वकील बन जाओ, तो ये वो ब्लॉगर्स बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने जिनको कहीं जॉब्स नहीं मिली और घर में फारिग बैठे थे तो इंटरनेट मैगजीन्स बना के टक 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 आपकी तस्वीर ली, नीचे एक पप्पू सा आर्टिकल लिखा, एंड दे ऑब्वियसली nobody does anything for free, so they charge money from, and this is how they make their earnings, which is not wrong. But आप जब किसी की कंट्रोवर्सी बनाते हैं तो आप वो पूरी पहले तो बात सुने। इन्हीं ब्लॉगर्स ने जहां जहां ये लिखा, लोगों ने नीचे लिखा कि ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, आप लोग गलत कर रहे हैं। नेगेटिविटी मत स्प्रेड करो यार। बट अच्छा चले, if I move forward and if I say that, you know, as an actor, what are some of the themes you would like to highlight this country or this entertainment industry can work on? ये जो हम सास बहू के चक्कर में फंसे हुए हैं, coming from someone like of your caliber. यार देखो, छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, अभी भी हमारे मदरसों के बहुत सारे इश्यूज हैं। हम किसी डिपार्टमेंट को नहीं टच कर सकते। हम जो क्राइम होता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ज़ैनब का वाकया हुआ कसूर में, 3-4 ड्रामे बना दिए, 3-4 ड्रामे बनाए, ठीक है, लाउडनेस की तरफ चले गए। आप क्या कर रहे हो? क्या रुक गया? कुछ नहीं रुका, वही हो रहा है, अभी हो रहा है। Absolutely. उतने ही बच्चे सफर कर रहे हैं, उतना ही इस मुल्क में वो सारी चीजें हो रही। कितनी चीजें कम हो गई? कोई कम नहीं हुई ना। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनको लेके आप उनको बेस करके वो बना सकते हैं। लेकिन कहाँ चलाओगे आप? आपका ब्रॉडकास्टर आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, यूट्यूब पे तो नहीं चला सकते सारी चीजें, यूट्यूब पे तो नहीं चल सकते। सो आपका ब्रॉडकास्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका ब्रॉडकास्टर भी तो आपको सपोर्ट करे ना। आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, चैनल्स वाले। मैं जो जिस वेब सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, 2011 when we designed this project, we pitched it and everybody refused it and rejected it because उसके पीछे एक चीज काम कर रही थी, एक अवेयरनेस काम कर रही थी कि यार ये अवेयरनेस लोगों को दिलानी जरूरी है, लेट्स वर्क ऑन इट। एंड वी डिड रिसर्च ऑन इट। और वो हमने जब पिच किया है, अरे नहीं इसकी तो रेटिंग ही नहीं आती, इसका तो ये है, इसका तो फला है, इसका तो ढमकान है। जब जी वालों ने हमसे कोई आइडिया मांगा तो हमने जब निकाल के वो उनको पिच किया, दे वेंट क्रेजी, दे सेड वी वांट दिस इज समथिंग न्यू एंड अनयूजुअल। उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अहमियत बाहर ज्यादा है, इंटरनेशनल अपील रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है हम लोगों को एज कम्पेयर टू डूइंग समथिंग लोकली, व्हिच इज वेरी सैड द वे इट वर्क्स। बट मैं बोल रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली नेटवर्क एग्जीक्यूटिव से रिएक्शन लेते थे या कंटेंट हेड से आपको मिलता था ये हमारी रेटिंग नहीं आएगी किसी? These are channel heads we are talking about. I mean, people who are leading the channel, they are not interested in something lucrative, whereas content is concerned. They are only interested कि मसाला होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और बस रेटिंग आनी चाहिए। ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। We don't want to do it. We don't want growth. We want volume. We don't want something कि जिससे हमारी सोसाइटी एजुकेट हो जाए। We don't want to educate society. Why should we take the headache of that? हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ड्रामा हम दिखाएं जिसमें औरत की तजलील है हर जगह। आप देख लो आपकी ड्रामा में औरत की तजलील कितनी होती है। आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, औरत पिस रही होती, चंडा मारो उन्हों, ठुड्डे मारो औरत को, जलील करो उसे, मुख्तलिफ अलकाब दो उसको। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये आपने माइंडसेट बना दिया कौम का ना। एक्टर्स जो एसोसिएशन एक्टर्स ट्रस्ट है, आर यू पार्ट ऑफ दैट?
जी, मैं आपको बताता हूँ ना, हमारी प्रोड्यूसर्स की भी एसोसिएशन है, लेकिन Yes. उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। जाती रीजनिंग बहुत सारी पीछे काम करती है, जो भी उसको हेड करते हैं लोग, उनके अपने फायदे हैं, और वो किसी के साथ नहीं खड़े होते। पेपर वर्क हल्का फुल्का कर दिया। वो जैसे हिंदुस्तान में है वैसे है नहीं यहाँ पे वो वाला सिस्टम। एक्टर्स की सो कॉल्ड एसोसिएशन है, लेकिन एक्टर्स ही उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वही वाली बात है ना, जब तक आपके साथ ज्यादती ना हो तब तक आप बाहर निकलना नहीं चाहते। मैंने, नादिया जमील साहिबा ने, फैसल रहमान साहब ने, हमने ये एक्टर्स एसोसिएशन फॉर्म की थी आज से कितने साल पहले, और तरले किए थे, रिक्वेस्ट की थी। वी एक्चुअली बेग्ड ऑल द एक्टर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। उनमें से बहुत सारे लोग बने, उनको समझाई बातें कि यूनियन होगी, साथ में सब होंगे तो किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ लड़ भी सकेंगे। लेकिन हर बंदा यहाँ पे पता है क्या कहता है, मेरी जुगाड़ फिट है तो मैं क्यों खड़ा हूं। मेरा जो रास्ता हमवार हुआ है, मुझे जो अंडर द टेबल पैसे मिल जाते हैं, तो मैं ओवर द टेबल बैठ के आप लोगों के साथ क्यों नेगोशिएट करूं। So nobody wants to come in the bad books. That's the issue with everybody. If you ask any other actor, if you will interview, उनके जुमले बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे वो कह रहा हूँ जो हो रहा है। मैं तो पॉलिटिकली कह सकता हूँ जी हमारी एसोसिएशन है और हम बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट कर, ये है पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इस वक्त कोविड का जो माहौल फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर और शूटिंग्स हो रही हैं कोविड में, एक्टर्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, यू थिंक दिस इज राइट टू गो ऑन विद शूटिंग राइट नाउ कंसीडरिंग द पार्ट दैट यू देखो बात पता क्या है, देखो ये यहाँ पे ना 2-3 सिचुएशंस आके फंस जाती हैं। पहली बात तो ये, जितना 2-2 ढाई महीने से लोग सब रेजिस्ट कर रहे थे, एक्टर्स चलो समहाउ द अदर फिर भी उनके पास कुछ रिजर्व्स होते हैं to spend those that particular lockdown period. But what about those daily wages people? We don't want to kill them. Right. So for them, we take risk. If actors are working, they are taking risk of their lives for those poor people actually. But it won't be appreciated somehow or the other. ये और जो ब्रॉडकास्टर है वो प्रोड्यूसर को थ्रेट करता है कि भाई मुझे तो फ्रेश कंटेंट चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें तो ये हो जाए। वो फिर आगे से यंग एक्टर्स को थ्रेट करता है, मैं आइंदा कास्ट नहीं करूंगा अगर आप शूटिंग पे नहीं आएंगे। सो एक फंसे हुए हैं सारे। ओके नोई भाई, on I mean, first of all, I hope I didn't bore you with my session. I hope this was worth it. I hope I had made the right questions. हूँ तो मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, लेकिन मजा आता है कि कम से कम बिहाइंड द कर्टन वाली बातें की जाए, टू वर्क ऑन सिस्टमैटिक इश्यूज। नॉट मेनी पीपल अप्रिशिएट इट, बट आई थिंक इट्स व्हाट द यंग पीपल शुड डू। जी बताएं, बोल रहे हैं कुछ आप? देखो यंग, पता क्या, हमने जो सिस्टम बना दिया है ना राफिज, सॉरी आई नो यू माइट बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमने जो सिस्टम बना दिया है ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम यंगस्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव छोड़ के जा रहे हैं। मैं ये हर अरूज को सवाल है, मुझे भी एक दिन चले जाना है। तो मेरा जहां तक ख्याल है ना, मुझे दुख होता है कि मैं अपने यंगस्टर के लिए कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ के जा रहा, मैं बर्बादी छोड़ के जा रहा हूँ, बुरे लोग छोड़ के जा रहा हूँ, उसके लिए नॉन प्रोफेशनल्स छोड़ के जा रहा हूँ जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। I hope हम कोशिश करेंगे कि हम उसको चेंज करें। But on the final thoughts, if anyone's watching, if any young talent is watching, any directors watching, any producers watching, some final thoughts from your end as to how we can make things better, or attempt to, even though it's as bleak as it sounds. We need few aggressive youngsters who believe in God, and we need some actually serious producers who are not afraid of anybody, and they are ready to take stand. We need unity in this nation. We need unity in our departments, actors की हो, चाहे वो producers की हो, चाहे वो cameraman की हो, spot boys की हो, क्रू के लोगों की हो। मैं चाहता हूँ सबकी अपनी अपनी एक यूनियंस बने, ताकि अगर एक के साथ ज्यादती हो तो सब उसके साथ खड़े हों। चले, fair enough. That's a very very positive note, and I hope that it gets come to that point, and we do see some light at the end of the tunnel. Nomi bhai, thank you so much. It's a beautiful work.
Acting, I love acting. Acting is a beautiful work. Even behind the camera जितने काम होते हैं, वो सारों का अपना एक मजा नशा है. और बिल्कुल सही. मेरे ख्याल में टू क्रिएट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है. ये एक तो अल्लाह के हाथ में है टू क्रिएट, और फिर उसने थोड़ी सी इनायत इन लोगों को दी है. अगर इसको ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, दे कैन डू वंडर्स. 10 साल बाद आना था ये डिजिटल मीडिया पाकिस्तान Yeah. में, 10 साल बाद आना था. Yes. लेकिन ये कोविड की वजह से वक्त से पहले आ गया है. अगर वक्त से पहले आ गया तो इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें छलांगे ना मारें, इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि दुनिया क्या मांगती है, किस तरह की गुफ्तगू मांगती है, किस तरह की चीजें मांगती है. अपने तय फैसला करके इसको बर्बाद मत करें. और पाकिस्तानी ड्रामा डिजिटल वाला ड्रामा नहीं है. पाकिस्तानी ड्रामे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. वो चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, सब चीजों के हिसाब से अगर दुनिया के साथ चलना है, फिर दुनिया वाली हरकतें करनी पड़ेंगी. 100%. No, that was perfectly very, very well put. Thank you so much once again, Noy bhai.